Good morning, everyone. Good morning, sir. Hope you are fine and doing well. In my previous class, we had completed with chapter number 10, Practical Geometry. In that chapter, we had learned the concept of constructing triangle with the different four criteria. That four criteria is three side given. We called it side. Two side and one included angle. That means side angle side. दो angle and one included side मतलब angle side angle. And the fourth one is right angle, hypotenuse and side and RS. And one more is about to draw the parallel line to the given line from the point which is outside of that line. तो जो line के ऊपर point ना हो उस point से उस line को parallel line होगा. We had discussed all the constructions. We did practice of all the construction in the classwork. Few questions I had assigned to you people to complete in homework, and I hope that you all have done with it. For the more practice, you can refer the R.D. Sharma. There is lot many questions are there to do the revision of that particular topic. Construction part require more practice because whatever the construction we did in classwork, in that part you have the guidance of mind when we did the construction, when every single step you followed. Now when you go with the new questions from the R.D. Sharma, you will understood that you exactly get the concept of side, angle side, side angle side, RHS और parallel और not. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये concept समझ में आया कि नहीं. And if you face any problem in it, do let me know. We'll solve it as doubt in class. Now let me know that is there any doubt in my previous class explanation. Chapter number 10 में आपको कोई doubt है तो पहले बता दो, वो clear करें. And if it is not that, then we will continue with new chapter, that is chapter number 14, Symmetry from NCERT. No, sir, no doubt. Good. Yeah. Now, today we are going to continue with our new chapter, that is chapter number 14, Symmetry. And about symmetry, you had already learned in your previous classes. Can anybody please define the symmetry? What did you mean or what did you understood when I said it is symmetrical or to find So the can I symmetry? say? Yes, Rusu. So symmetry, when we can say that when in the shape there is equality in the half symmetry. Okay. Anyone else? Anyone else? So simply मैं कह सकते हैं कि a line which can be divide any shape in identical parts. ऐसी लाइन जो किसी भी शेप को आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम सिमेट्री कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे. नाउ व्हेन आई से सिमेट्रिकल शेप्स, आइडेंटिकल डिवाइडेशन ऑफ पार्ट. आइडेंटिकल क्या होता है? दोनों एक जैसे, सेम टू सेम. ठीक है, लाइक सम फ्यू शेप्स वी हैड लर्न इन आवर प्रीवियस क्लासेस. Like you said, if you had an equilateral triangle, क्या है?
like you had a square. Oval. ठीक है, सॉरी। तो इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस शेप को हम अलग अलग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखो, आइडेंटिकल पार्ट होंगे दोनों। अगर मैं यहां से बनाऊंगा तो ये दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स बनेंगे, और एक यहां से बनाएंगे तो ये आइडेंटिकल पार्ट्स बनेंगे। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ हमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इसी तरह अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के अंदर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ 2 और होती है, वो होती है डायगोनल। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं। जबकि रेक्टेंगल में एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, 2 ही लाइन सिमेट्री होती है, डायगोनली नहीं है। अगर आपको याद हो तो क्लास 6 में हमने क्लास वर्क के अंदर एक एक्टिविटी की थी, एक पेज देखी, ठीक है। पहले वो रेक्टेंगल पेज दिया था, we fold it vertically, horizontally, and we find out कि वो coincide होता है। But when we fold it diagonally, we find out कि जो rectangle पेज था वो coincide नहीं हुआ था। Then after उसको हमने कट करके स्क्वायर किया था, और जब वो स्क्वायर पेज को फोल्ड किया, what we find out कि वो डायगोनली भी coincide करता है। इसलिए रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जबकि स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ट्राइंगल में तीनों ट्राइंगल के लिए अलग अलग होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 3 होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए 1 होती है, और स्केलेन ट्राइंगल में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Good. So as of now, just write down the title, chapter number 14, symmetry in your notebook. Symmetry और ये पार्ट डेफिनेशन वाला, और ये 3 स्टेप्स जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, वो स्टेप्स और उसकी सिमेट्री, इतना कंप्लीट करो नोटबुक के अंदर। उसके बाद आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ सिमेट्री इन आवर डे टू डे लाइफ। बट फर्स्ट लेट्स फिनिश इट एज इन क्लास वर्क। Make sure you, when you draw this, use the scale, and the line of symmetry must be dotted line.
CW done, sir. Good. Now do let me know that where this symmetrical line concept is used in our day-to-day life. आपने कहीं देखा है इसका यूज? Sir, may I tell? Yes, please. Sir, we use symmetry in cutting the shapes in equal parts. बिल्कुल, very good. Then that is associated with a lot many businesses, even industries में होता है, like art में होता है, डिजाइनिंग में होता है, हर जगह होता है. ठीक है. और कोई? Now let me know that where you did this symmetrical examples in our nature. तो by naturally बनाओ, artificial नहीं. artificially तो हम बहुत सारी डिजाइन या बहुत सारी चीजें जो सिमेट्रिकल क्रिएट करते, बट इवन इट्स नेचर ऑल्सो वी फाइंड आउट सिमेट्रिक. कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? Sir, in plant flower? There are lot many plants flower is symmetrical in a shape. Human body itself you can say it's a symmetrical like vertically. You can say the butterfly is also like having symmetry in their body. ठीक है. There are n number of things from even nature you can find it out. They are symmetrical. ठीक है. Get it? And use of symmetry concept is in lot many places like in industries and design, even in ceramic industries जो डिजाइनिंग बनता है, एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस में जो डिजाइन बनता है, आर्ट वर्क में जो डिजाइन बनता है, फिर ये जो प्लानिंग्स करते हैं, ठीक है, आर्टिशियंस यूज करते हैं, प्लानिंग्स में यूज होता है. ठीक है. देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ ये कंसेप्ट यूज होता है, तो हमें पढ़ना चाहिए. ठीक है. अब देखो, अब स्टार्ट करता है एक्सरसाइजेस 14.1 का पहला क्वेश्चन. तुम्हें एक प्रैक्टिकल करने को कहा है. इसके लिए पंच मशीन होना जरूरी है, बट बिना पंच मशीन भी हम कर सकते हैं. लेट विल ट्राई टू डू इट. ओके. क्या कहा है कि कॉपी द फिगर्स विद द पंच होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग. इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है. आपको ये बताना है कि जैसे सपोज पहला फिगर है, देखो 14.1 क्वेश्चन 1 का पहला जो फिगर है A1 वो इस तरह से है. एक यहाँ पे होल है और एक यहाँ पे होल है. यू नीड टू फाइंड आउट कि इसको कैसे फोल्ड करके होल किया गया होगा. ठीक है. तो अब देखो, अगर ये पेज ऐसे रखते हैं और इसको ऐसे फोल्ड करके तुम यहाँ पे एक पंच करोगे. पंच पता है ना क्या होता है? Yes, sir. Yes. ठीक है. आप लोग क्या करो, कैसे पेज फोल्ड करके, पंच ना हो तो कोई नहीं, पेन है ना, पेन, तो पेन से यहाँ पे होल हो जाएगा. वो पेन से होल करो एंड व्हेन यू ओपन इट यू विल फाइंड आउट एग्जैक्टली द सिचुएशन. तो विच मीन्स कि इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ है वो क्या हुआ, इन दोनों के मिडिल में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ. ठीक है. तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री बना वो ऐसे बनेगा. ठीक है. समझ में आ रहा है? लीवर्स देखो, लीवर्स में दे हैव गिवन द पंच होल एट हियर. अगर स्क्वायर पेज है तो समझ में आएगा कि डायगोनली फोल्ड किया है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पंच लगाया गया है. जब आप पंच लगा के देखोगे और ओपन करोगे, एग्जैक्टली आपको इन दोनों कॉर्नर पे यहाँ पे पंच मिलेगा. लाइकवाइज सिचुएशन ओनली. दैट मीन्स यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री क्रिएट होगी वो होगी डायगोनल. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है. उसके बाद देखो Yes, sir.
इसमें यहाँ पंच दे रखा है, दैट मीन्स इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करके यहाँ पंच किया होगा। जब ओपन करोगे तो दोनों तरफ एक एक पंच दिखेगा, तो ये यहाँ से फोल्ड होगा, यानी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। क्लियर? क्लियर। ऐसे ही तुम्हें ए से लेके एल तक डिफरेंट डिफरेंट शेप दिए हैं। पहले ए से लेके ई तक, एफ तक स्क्वायर है, जी से लेके आई तक ट्राइंगल है, और जे से लेके एल तक सर्कल है। लेट ऑब्जर्व इट एंड कंप्लीट इट इन टेक्स्ट बुक। इसको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट कर देना है, इसको वहाँ नोटबुक में कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम एज वेल एज उसका जो परफेक्शन लेवल है वो नहीं आता है, इसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है जब आपको पूरा नोटबुक में कॉपी करने। तो लेट्स फिनिश इट दैट क्वेश्चन 1 A to L। सारे क्वेश्चंस अभी इसी वक्त टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करो। पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेंसिल और स्केल का यूज करना है। वंस यू कंप्लीट इट, प्लीज शो मी दैट योर आंसर्स इन on a screen so I can observe it. Okay, and if you find out any difficulty in it, let me know that. We'll discuss. Sir, is it correct? जी, और ये जो E1 है ना, उसमें और पॉसिबिलिटीज आएगी बेटा। डायगोनली भी हो सकता है, 2 हो सही है और 2 हो सकती है डायगोनली। ओके सर। ठीक है, और 2 ड्रॉ करनी पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। Sir. हाँ यार। Sir, we can tell that ये दो डॉट जो है, डॉट के बीच में की लाइन जानी चाहिए तो सिमेट्री हो जाएगा। हाँ। ओके। हाँ। Sir, it is correct. Priyanshu Abdoja. Yes, Priyanshu. Okay. There are few steps on the next page also. Sir, mine is correct. Even में there is 3 more possibilities बेटा। Okay. Even और like K1 में also there are more possibilities. Okay, sir.
To do the correction, even that answer is given at back 14.1 के, तो उसमें से देख के करेक्शन कर सकते हो, ठीक है. First you attempt by yourself, after that you did the correction from the back. Then everyone, that is audible and visible, everyone. I don't understand that. D1. Even. No sir, D, fourth. Okay. D1. See, D1 is about, there is two possibilities. एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पंच दिया है तुम्हें, ठीक है. अब सबसे पहले तो तुम्हें यही लगेगा कि ये इस तरह से फोल्ड किया होगा और पंच लगाए गए होंगे, है ना. और दूसरी पॉसिबिलिटी ए भी है कि इसको वर्टिकली फोल्ड किया जाए और पंच लगाया जाए. इन दोनों केसेस में सही है, बट दोनों में से एक लाइन बनानी जाएगी, ठीक है. इधर वो इस तरह से किया गया होगा, इधर वो इस तरह से किया गया होगा, एंड बोथ द आंसर इज करेक्ट. सॉरी, एनीवन, नॉट एन इशू. कोई भी एक किया होगा चलेगा, ठीक है. देन एवरीवन, say please yes, no in the chat box so I get the idea it is done or remain. Now see the question number 2 क्या दिया. Given the line of symmetry, find the other hole. अब इसमें क्या करना है तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे दिया, ठीक है. यहाँ पे तुम्हें लाइन ऑफ सिमेट्री दिया, यहाँ पे होल दिया, तो ये पंच जब किया गया होगा तो उसका दूसरा होल कहाँ पे होगा. पहला क्वेश्चन क्या था कि पंचिंग के दोनों होल दिए, यू नीड टू फाइंड आउट लाइन ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लाइन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है, एक होल दिया है, आपको उसका दूसरा होल कहाँ पे होगा वो डिसाइड करना है. तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि डायगोनली यहाँ पे होगा. कुछ क्वेश्चन तो आपको ऊपर के क्वेश्चन पे आंसर मिल जाने हैं, समझ में आ रहा है कि जैसे उसको कैसे फोल्ड किया होगा वो ही आपको बताना है. सेकेंड क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, ठीक है.
इट इज गिवन इट हियर, तो इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया होगा तो सेकंड होल यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको होल ही वहां पे दिखाना है। तो दैट क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखो। In the following figure, the mirror line is given as dotted line. Complete each figure performing reflection in the dotted. You might perhaps place mirror along the dotted line and look into the mirror for an image. Are you able to recall the name, the figure you complete? तो तुम्हें मिरर इमेज ड्रॉ करना है, पूरा करना है। तो वैसे एक ऐसा दिया है, यहाँ से इतना कंप्लीट होगा और लास्ट में उसका शेप लिखना है कि क्या क्रिएट हुआ, लाइक स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड दिया है इतना दिया है। और इसे करने के लिए वैसे तो आप इमेजिनेशन से भी कर सकते हो। दूसरा एक है कि दे गिव अ ट्रिक टू यू डू इट। ये वाली जो लाइन है ना, उस लाइन पे मिरर रख दो, यू विल फाइंड आउट द सेम इमेज कि आपको यहाँ आगे क्या करना। ठीक है, C1 में जो बनेगा रोम्बस बनेगा, D1 में सर्कल बनेगा, E1 में पेंटागन बनेगा और F1 में हेक्सागन बनेगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3। कोई डाउट है तो पूछो बेटा, इजी है, कोई ज्यादा कोई इश्यूज नहीं है, सारे कंसेप्ट हम पहले से पढ़ के आए हुए। ठीक है, मिरर इमेज, सिमेट्रिकल लाइन ढूंढना, सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करना, इसमें पंचिंग वाला थोड़ा नया था, बट एनी हाउ इट्स इन कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल लाइन ओनली। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब तक जितना पढ़ा उसमें, अब तक हमने सिमेट्री का डेफिनेशन पढ़ा, सिमेट्री कहाँ यूज होता है वो पढ़ा, सिमेट्री वो देखा, फिर हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 में क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, 2 और 3 को समझा। Is there any doubt? No, sir. Good. After that, see the question number 4. The following figures have a more than one line of symmetry, and such figure are said to have a multiple line of symmetry. तो नीचे एक रेक्टेंगल दिया जिसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, स्क्वायर दिया जिसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, फिर एक सिमेट्रिकल शेप है जिसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। जिस किसी शेप में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है उसे हम मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री वाला शेप कह सकते हैं। आपको करना क्या है, तो लाइक वाइज नीचे जो क्वेश्चन दिया है ए से लेके एच तक, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैड। और वो हमें कब पता चलेगा कि जब हम उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हम उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इट, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन दैट ईच एंड एवरी शेप व्हिच इज गिवन। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर दैट इन हाउ मेनी शेप्स हैड अ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट एवरी शेप कंसिडर्ड एज अ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टूड एवरीवन? सर मुझे क्वेश्चन 4 समझ में नहीं आया। क्वेश्चन 4 में बेटा तुम्हें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे देखो ये फिगर है, ठीक है, इन वाली फिगरों में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना आता है ना तुम्हें देव? जैसे इसमें करके दिखाया हुआ है, ठीक है, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किए, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। लाइकवाइज तुझे इस शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है, और जिस किसी भी शेप में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो उसे मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। सच फिगर इज सेड मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको फिर लास्ट में यहाँ पे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री टेक्स्ट बुक में ही करना है, क्योंकि डायग्राम नोटबुक में तो बनने से रहे। सब में लाइन ऑफ सिमेट्री कर दो, और जो जो लाइन ऑफ सिमेट्री में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको नीचे ऐसे टिक लगा दो। ये सारे शेप्स है जिसमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ठीक है,
You just simply need to find out the line of symmetry in that particular shape. Now after that you have to pick that shape which had multiple line of symmetry. जिसमें एक ही line of symmetry है उसे टिक नहीं करना है, जिसमें एक से ज्यादा line of symmetry है उसी को टिक करना है. ठीक है. After that, question number 5 and 6, which is about to copy the diagram, but due to the time limitation, I don't think we are able to finish it. Let's see and discuss the question number 7. State the number of line of symmetry for the following figures. तो ये हमने प्रीवियस क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ा है ना, उसके बेस पे हम आंसर कर सकते हैं. बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 3. आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी सिमेट्री होती है? 1. स्केलेन ट्रायंगल में कितनी होती है? No, sir, no. नो. स्क्वायर में कितनी होती है? 4. रेक्टेंगल में 2. रोम्बस में did you know the shapes and properties of rhombus? Yes, sir. तो लास्ट ईयर हमने किया था. ठीक है. उसके बाद रोम्बस के बाद कौन सा शेप दिया है? पैरेललोग्राम. जीरो. Quadrilateral. That depend on that which quadrilateral is given you. यहाँ पे सिर्फ quadrilateral लिखा है तो विल से 0. रेगुलर हेक्सागन. 4. हेक्सागन 6. वो हम ड्रॉ करके देखेंगे बाद में. ठीक है. और सर्कल. Circle has n number of line of symmetry. You can say infinite line of symmetry circle had it. That is also we drew and understood at that time when we solved it. Now today what we had done? Today we had done about what is symmetry, use of symmetry, where you find the symmetry in day-to-day life. Then we had solved exercises 14.1 question number 1, and then we had discussed exercises 14.1 question number 2, 3 and 4. Your today's homework is about to complete exercises 14.1 question number 1, 2, 3 and 4 in textbook. ये चारों क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करने हैं. नोटबुक में नोट डाउन नहीं करना है इसको, क्योंकि नोट डाउन के इसमें शेप बनाने में टाइम लगेगा. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. गुड, वेरी गुड. चलो, तो बेस्ड ऑन दैट चलो आज हम अटेंडेंस लेते हैं. उसके बाद आप जा सकते. जस्ट गिव मी अ मिनट एंड गिव यू अटेंडेंस इन अ चेक बुक्स. प्रियांशु आद्रोजा, अयान अंदानी, देव भद्रकिया, मानव बावरवा, रामदेव सोस्ती, रुसिल देसाई, युग देत्रोजा, ध्रुव जेटलोजा, सोहम, आद्या, राधे, हर्ष, ईश्वा, खुशी, दर्शिता, रवि कुमार, वेदांत, साइना पाठक, नंदन सौसानी, प्राप्ति ठोरिया, ऋषिका उकानी, सुहानी विरमगामा. Sir. हाँ बेटा. Sir, we have to do homework question number 1, 2, 3 and 4 in textbook only. जी बिल्कुल, इन टेक्स्ट बुक ओनली. क्लियर? Okay, chalo. Bye bye everyone. Take care. Stay safe. See you all in the next class. Bye everyone.